Hello students, so today we are going to start with the second chapter of statistics, that is collection of data. As we have already discussed in the first chapter, the statistics is all about the quantitative figures, quantitative numbers, that is data to express the statements given in the economy. Like whatever qualitative data we are talking about, qualitative characteristics we are talking about the economy, to support that statements, to make them more viable, to make them more concurrent, we need the numerical data, the numerical figures that is given by the statistical analysis. So for that statistics, we have already studied about the 5 stages of statistical data collection. So the first stage is collecting the data. So now let us discuss more about the collection, how the data is collected, where to use it, what are the various methods of collecting and their advantages and disadvantages. So let's get started with this chapter. Now, collection of data. The purpose of collection of data is to show evidence for reaching a sound and clear solution to a problem, and there are various sources to collect that specific data. Basically, collection of data में हम क्या करते हैं कि जितने भी फिगर्स को या जितने प्रॉब्लम को हमें डील करना होगा, हम उससे रिलेटेड एविडेंसेस लेकर आते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स लेकर के आते हैं, सो दैट हम उस पर एनालिसिस कर सकें और अपने कंक्लूजन्स को डिराइव कर सकें. सो बेसिकली हम 2 सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद जा कर के डेटा कलेक्ट करके लाता है. लाइक मैंने एग्जाम्पल में अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हमको ये चेक करना है कि क्लास 11th के बच्चे कौन से स्पोर्ट को खेलना पसंद करते हैं और कौन से स्पोर्ट को खेलना पसंद नहीं करते हैं. सो फॉर दिस यू नीड टू इंक्वायर ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर्सनली, सो दैट हम उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर डेटा लेकर के आ सकें. Second method is secondary data. Secondary data is that which has already been collected in somewhere. It is available in the form of published or unpublished sources, and we are just extracting the data from that which is useful to us. For example, अगर आपको इंडिया के सेंसस के बारे में कोई डिटेल्स चाहिए या आपको किसी स्टेट के स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में कोई डिटेल चाहिए, सो फॉर दैट आप पॉपुलेशन काउंट करने फिजिकली नहीं जाओगे. यू विल जस्ट Google, you will just search out for the journals, for the economic magazines, or for any of the sites like NSSO or UNESCO sites, so that आप वहाँ से जा कर के जर्नल के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करोगे कि कितनी पॉपुलेशन किस स्टेट की है, और आपको उस पर जो एनालिसिस करना है वो उस ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा से हो जाएगा. सो बेसिकली 2 टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. Now let us understand some of the key terms which we'll be using in this chapter or later in statistics. The first term is variable. We all know what is variable. Maths में भी हम use करते हैं x, y, z, a, b, c. So variable वो वैल्यू है, वो proportion है जिसकी वैल्यू हर स्टेप बाय स्टेप चेंज होती जाएगी. हर सोल्यूशन में, हर प्रॉब्लम में हम उसकी वैल्यू को कुछ और रखेंगे. लाइक अगर हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम पे x विल बी द टन्स ऑफ प्रोडक्शन और द kgs ऑफ प्रोडक्शन. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इंक्रीज, then x will be the degree Celsius or degree Fahrenheit. If we are talking about the national income increase, the GDP increase, then x will be the rupees in crores or rupees in lakhs or thousands, like this. Next point is observation. So observation is what? The value of variable. Whatever we have collected and whatever we have observed out of that specific data, raw data, that is observation. Third is data. Data is observation corresponding to the different variables. एक ही वेरिएबल पर हमें कितना अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है, उस सबको हम कलेक्टिवली डेटा कहेंगे. लाइक अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन में आई एम हैविंग 5 पैरामीटर्स. वीट का प्रोडक्शन कितना, राइस का कितना, पल्सेस का कितना, ज्वार का कितना एंड कैश क्रॉप्स का कितना. सो दीज आर द 5 वेरिएबल्स ऑन विच वी आर हैविंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टन्स और lakh tons, and this complete variable observation is called data. Then is statistical investigation. That is whatever information is conducted, whatever information is collected by using the statistical methods. हम जितने भी statistical methods पढ़ेंगे आगे जा करके, वो सारे methods को लगा करके हम जो भी information collect करके लेकर आते हैं, gather करते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? Statistical investigation.
नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल यूनिट, दैट इज आप किसी भी वैल्यू के, किसी वेरिएबल का मेजरमेंट क्या लेते हो। हम जैसे अगर किसी चीज़ के फिगर की बात रुपीज़ में कर रहे हैं तो रुपीज़ का डिनोमिनेशन किस पे ले रहे हैं, हम करोर्स में मान रहे हैं या लैक्स में ले रहे हैं या थाउजेंड्स में ले रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेटिंग मेजरमेंट्स तो हम वहाँ पर केजी लेते हैं या टन्स लेते हैं। सो इस तरह से जो भी हम मेजरमेंट वैल्यू लेंगे, मेजरमेंट्स के लिए जो हम यूज़ करेंगे, यूनिट्स जो यूज़ करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल यूनिट। Now let us check some of the differentiation between primary data and secondary data. So first of all, the basis is meaning. So primary data refers to the first-handed data gathered by the researcher himself. Definitely अभी हमने definition में देखा कि जो भी investigator होगा या better to say जो enumerator होगा वो यहाँ पर खुद पर्सनली जा करके डेटा गैदर करके लेके आता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट हैंड डेटा, क्योंकि हमने खुद ही कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डेटा, दीज आर कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, जिस किसी और ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा और हम उससे अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी डेटा इज़ अ काइंड ऑफ सेकेंड हैंड डेटा। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्राइमरी डेटा कलेक्शन की प्रोसेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू सर्वे 50 पीपल देन आपको हर एक पर्सन के पास जा कर के स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी, उनसे एक टाइप ऑफ 1-to-1 कन्वर्सेशन, 1-to-1 इंटरव्यू जैसा करना पड़ेगा, विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम। बट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डेटा, इट्स क्वाइट क्विक एंड ईजी, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेज हैं, यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट और आपको अपने जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसको निकालना है और अपने डेटा में यूज़ कर लेना है। सोर्सेज की बात करें तो प्राइमरी डेटा में वी यूज़ सर्वेज, वी यूज़ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनर, पर्सनल इंटरव्यू एक्सेट्रा। मतलब आपने जैसे सेंसस के टाइम पे देखा होगा, जब जनगणना होती है तो हर जगह सर्वे किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को जब डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चनर, जैसे आपके पास कभी आया होगा कि क्वेश्चनर कोई होता है, उसको आपको फिल करके देना है कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है या नहीं है, किस टाइप का प्रोडक्ट अच्छा लगता है। सिर्फ इस तरह की डिटेल्स के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी डेटा कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पब्लिश सोर्सेज में डेटा होते हैं बहुत सारे, और अगर हमें कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वी कैन जस्ट यूज़ इट इन आवर इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो प्राइमरी डेटा कैलकुलेट करना इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगेन आपको क्योंकि ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, आपको हर किसी के पास जा कर के 1-to-1 कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। अगर आप एक लोकेलिटी एरिया की बात कर रहे हो तो यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, जहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी लगते हैं, कॉस्ट एंड टाइम लगता है। जबकि अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो इट्स अ क्वाइट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका सोर्सेज के बारे में, आपके एक्सपेंसेस के बारे में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। अवेलेबल की बात करें, अवेलेबिलिटी की, सो प्राइमरी डेटा इज़ अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म। क्रूड ही होता है क्योंकि आप जिससे भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो बहुत मिक्स्ड अप आंसर्स या लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको एक पर्सन से मिलेगी, जिसमें आपको बाद में स्क्रूटनाइज करना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम उसे रखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे नहीं रखेंगे। बट अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी रिडिफाइंड फॉर्म में, काफ़ी डिफाइंड तरीके से दी होती है, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपकी ज़रूरत की है। टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, सर प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो है वो काफ़ी रिलायबल होता है और काफ़ी एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर यू नो कि आपने खुद जा कर के वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और जो भी आंसर्स आपको पता है दे आर वेरी मच ट्रू एंड वैलिड एंड करेक्ट, क्योंकि आपने खुद उस पर्सन से ही वो इन्फॉर्मेशन मांगी है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले थे। बट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डेटा, तो यहाँ पर हम अगर एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं कि क्या वही स्टेटस था या फिगर्स थोड़े बहुत मैनिपुलेटेड या वो थोड़े से एवरेज बेसिस पर, अप्रॉक्सीमेट बेसिस पर भी लिखे गए हैं। Now let us talk about some of the sources of primary data. So number one is
पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जो एन्यूमरेटर है, रिसर्चर है, वो खुद ही एक सर्वे कंडक्ट करता है और जो भी पर्सन से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनसे वो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने की। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और आपके रिस्पोंडेंट को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा या वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो उसको इतना क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो वहाँ पर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, टू गाइड हिम कि ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा था और आप उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करो। इवन अगर वो कोई आंसर देते हैं फॉर एग्जांपल और अगर हमें वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है या हमें लगता है कि और भी कुछ आंसर में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो वी कैन आस्क देयर अपॉन। इसके अलावा इस मेथड में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, मिसइंटरप्रिटेशंस जो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी तो आप 1 to 1 फेस टू फेस बैठे हो, आप उसे आसानी से क्लियर वहीं पे कर सकते हो। नेक्स्ट वी कैन से कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है वो बहुत बार आंसर्स को पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके पर्सनल जेस्चर से, उनके रिएक्शन से भी आंसर्स को मेजर कर लेते हैं, आंसर्स को समझ लेते हैं। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप रिटन फॉर्म में तो आंसर कुछ और लिख रहे हो बट आपके मन में कुछ और चल रहा है या आप कुछ और कहना चाहते थे, तो यहाँ पर वो फेस रीडिंग से, वो रिएक्शंस देखकर रिस्पोंडेंट्स के भी आंसर्स का गेस लग जाता है। टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, तो पर्सनल इंटरव्यू में देयर इज़ अ हायर रिस्पॉन्स रेट। डेफिनेटली जब आप सामने से बैठे होगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो आपके डेटा से रिलेटेड है वो पूछ सकते हो और उसके रिस्पॉन्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। It allows use of all type of questions. Basically 2 type of questions होते हैं statistical analysis में, that is close ended question and open ended questions. Close ended questions are like जिसमें yes, no, true, false या acceptable, not acceptable इस तरह के आंसर्स होते हैं, या जहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं and from that options you have to choose one. So these are a kind of close ended questions जिसका आंसर एंड जो है वो या तो yes होगा या तो no होगा। टॉकिंग अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चंस इज़ लाइक जहाँ पर जस्ट सजेशंस पूछे जाते हैं या आपके कमेंट्स पूछे जाते हैं या आपकी एडवाइसेस पूछी जाती हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स देने से जनरली लोग थोड़ा सा बचते हैं कि हम एडवाइजरी क्वेश्चंस के आंसर्स ना दें, हम सजेशंस के क्वेश्चंस के आंसर्स ना दें। तो यहाँ पर अगर आप सामने 1 to 1 बात कर रहे हो तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, क्लोज एंडेड भी और ओपन एंडेड भी। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट में वही लिखा है कि इट्स बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज आप यहाँ पे व्यूज़ सामने वाले पर्सन के इजीली सुन के समझ सकते हो। देन इट अलाउज द क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चंस। एम्बिगुअस क्वेश्चंस आर लाइक जिनका मीनिंग उतना क्लियर नहीं होता, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके 1 से 2 मीनिंग भी है, उसमें वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जो आप पूछना चाह रहे थे वो उतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर आप उन क्वेश्चंस की मीनिंग्स को भी बहुत ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हो। Next, we are talking about some of the disadvantages of this personal interview. First is most expensive. Definitely अगर आप लोगों के पास जाकर के 1 to 1 कन्वर्सेशन कर रहे हो और उनसे एक एक से डिटेल मांग रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस बहुत लगेंगे, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि पर्सनल इंटरव्यू में लोगों के रिएक्शंस रिकॉर्ड करना, लोगों के रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ जनरल लेमैन पर्सन। सो फॉर दीज टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो इस तरह के इंटरव्यूज़ लेने का, ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने का, तो उन एक्सपर्ट्स के लिए भी हमें एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्डेंट। डेफिनेटली अगर आपका जो एन्यूमरेटर है या रिसर्चर है वो काफ़ी डोमिनेंट टाइप का पर्सन है, जिसके वॉइस में एक अच्छा कंट्रोल है, या जो आसानी से रिस्पॉन्डेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि रिस्पॉन्डेंट्स इसके फेवर में जाकर के या अगेंस्ट में जाकर के भी आंसर कर सकते हैं। सो एक फ्री फॉर्म ऑफ आंसर जो होता है या एक रिस्पॉन्डेंट जो फ्री स्टेट ऑफ माइंड होकर आंसर देता, वो पर्सनल इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि बस ये सोच करके भी रिस्पॉन्डेंट्स आंसर करेक्ट नहीं देते कि सामने वाला पर्सन उनके बारे में क्या सोचेगा।
नेक्स्ट इज़ मोर टाइम टेकिंग, डेफिनेटली एक एक को इंटरव्यू लेना, समटाइम्स इट हैपन्स कि सर्वे 5 मिनट 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करने बैठे हो एंड इट टेक्स हाफ एन आवर to 1 hour or 2 hours depending on the talks which the respondents and the enumerator are having. Next method is mailing questionnaire. फीचर्स की बात करें तो मेलिंग क्वेश्चनेयर में हम जो एक कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है इसको हम लोगों के पास सेंड कर देते हैं थ्रू मेल. मेल कैन बी लाइक हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भेज सकते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में. आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा चल गए हैं तो आपके पास मेल पे सर्वेज भी आ जाते हैं. आपने देखा होगा बहुत बार फेसबुक अपने सर्वे कंडक्ट कराता है, कुछ कुछ वेबसाइट्स के अपने सर्वेज होते हैं. तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चंस की लिस्ट आती है. हार्डली दे हैव 5 to 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू आंसर येस, नो और ट्रू, फॉल्स और सम ऑफ योर कमेंट्स इफ दे आर. देन इसमें क्वेश्चनेयर में एक एक क्वेश्चन को हम भेज देते हैं वो हमारे रिस्पोंडेंट्स के पास में, और उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसे कंप्लीट करके एक स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें रिटर्न कर दे. एंड यहाँ पर एक एडवांटेज होता है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर एन्यूमरेटर्स खुद नहीं जा सकते, बहुत दूर के लोकेशंस है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चनर्स को मेल करके, क्वेश्चनर को भेज करके आराम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं. इट ऑल्सो गिव रिस्पॉन्डेंट्स सफिशिएंट टाइम टू आंसर थॉटफुल क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पर एक बेनिफिट बहुत अच्छा होता है. कभी कभार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन, अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो कोई क्वेश्चन एन्यूमरेटर ने ऐसा पूछा जिसके बारे में रिस्पोंडेंट्स ने सोचा नहीं था, या वो अगर ये बोले कि हमें टाइम चाहिए, हम थोड़ा सा सोच के बताएंगे, सो वो वाली सिचुएशन पर्सनल इंटरव्यू में नहीं हो पाती. बट मेलिंग क्वेश्चनेयर में ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स को लगता है कि अभी हम थोड़ा सा 10-15 मिनट सोच के, या हम एक दिन में अच्छे से सोच करके फिर आंसर करेंगे, सो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है. एडवांटेजेस की बात करें मेलिंग क्वेश्चनेयर के, तो फर्स्ट एडवांटेज है लीस्ट एक्सपेंसिव. यहाँ पर एक्सपेंसेस के नाम पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनेयर प्रिंटेड फॉर्मेट में भी दे रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू टेक आउट प्रिंट आउट एंड उसे हमें सेंड करना होता है लोगों के पास में, विच इज़ क्वाइट चीप. एंड अगर हम ऑनलाइन सर्विस की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपको जस्ट एक सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है और आपको जितने भी रिस्पोंडेंट से आपको रिक्वायरमेंट है आप उन्हें मेल कर दीजिए एंड दे विल आंसर बैक योर क्वेश्चंस. नेक्स्ट एडवांटेज है कि दिस इज़ द ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज़. डेफिनेटली वो एरियाज़ जहाँ पर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, या ऐसे एरियाज़ जिनके बारे में आपको रास्ते ज़्यादा क्लियर नहीं है, वहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चनर भेज करके रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर हमारे रिस्पोंडेंट्स पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसा पर्सनल इंटरव्यू में होता है कि एन्यूमरेटर अगर सामने बैठा है तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सेस को मैनिपुलेट कर देगा. बट क्वेश्चनर मेथड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट के हाथ में है और वो क्वेश्चंस खुद पढ़ेगा, और जो भी उसे फीजिबल आंसर लगेगा, जो उसे लगेगा कि लॉजिकल आंसर है, वो उसे टिक करेगा वहाँ पे. देन यहाँ पर मेंटेन्स द एनोनिमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स. यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स की एनोनिमिटी बहुत मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पर पता तो होता नहीं है कि कौन रिस्पोंडेंट है. एंड जनरली आप ये देखोगे कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चनर्स आते भी हैं तो दे डोंट आस्क यू फॉर योर नेम और फॉर योर एनी ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. वहाँ पर वो पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ आपके रिस्पॉन्सेज से मतलब होता है, उनको डेटा से मतलब होता है, आपके नेम्स से नहीं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस, या इस तरह के क्वेश्चंस जो शायद पीपल पब्लिकली आंसर नहीं करते, या किसी भी एन्यूमरेटर को 1-to-1 इंटरव्यू में आंसर नहीं देते, उस तरह के सेंसिटिव क्वेश्चंस को आप क्वेश्चनर मेथड से बहुत इजीली पूछ सकते हो. डिसएडवांटेजेस की बात करें सो मेजर डिसएडवांटेजेस इलिटरेसी. इंडिया में जिस हिसाब से इलिटरेसी का रेट है, वी कैन से कि क्वेश्चनर मेथड उन एरियाज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर लोग इलिटरेट हैं या जिन्हें नहीं समझ में आता कि क्वेश्चनर को कैसे फिल करना है. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम. डेफिनेटली आप जैसे 1-to-1 इंटरव्यू में बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, तो आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स मिल जाएगा. बट क्वेश्चनर मेथड में यू कैन नॉट से कि आप इसका आंसर 1 दिन के अंदर दीजिए या 2 दिन के अंदर दीजिए. यूजुअली जब क्वेश्चनर्स आते हैं तो दे गिव अ टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली टू 1 वीक, 15 डेज और समटाइम्स 1 मंथ. सो इट्स अ लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम कि अगर आपको इस तरह से डेटा कलेक्ट करना है तो आपको बहुत प्रायर फॉर्मेट से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन डिले हो सकती है अगर टाइम से रिस्पॉन्सेज नहीं आए तो.
नेक्स्ट इज डज नॉट अलाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस। डेफिनेटली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चनर में इंक्लूडेड है जिसके दो मीनिंग है या कोई और सेंस निकल रहा है या वो क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए था, तो यहाँ पर उसका डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्रिप्शन में देना पॉसिबल नहीं होता। एंड इस टाइम पर ऐसा होता है कि रिस्पॉन्डेंट समटाइम इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, उनके आंसर नहीं देते। नेक्स्ट इज रिएक्शंस कैन नॉट बी वॉच। डेफिनेटली आपने क्वेश्चनर किसी रिस्पॉन्डेंट को दे दिया है और अब वो फिल करके आपको सेंड बैक करेगा, तो यहाँ पे आप उसके रिएक्शंस को कभी नहीं देख पाओगे कि वो आंसर उसने अपने मन से भी दिया या ऐसे ही दे दिया। लाइक समटाइम्स हम जब ऑनलाइन सर्विस देते हैं और वो पूछता है कि यू आर फीलिंग गुड, लाइक किसी ऐप की रेटिंग है या कुछ भी, तो समटाइम्स वी जस्ट गिव इट 4 स्टार और 5 स्टार विदाउट थिंकिंग फॉर अ वाइल कि ये सही था या नहीं था। तो इस तरह की चीज़ों में यहाँ पर रिएक्शंस देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।